A very good morning, students. Our next theorem is if real part of Zn is greater than minus 1, then the series summation of n varying from 1 to infinity log 1 plus Zn converges absolutely if and only if summation of n varying from 1 to infinity Zn converges absolutely. मतलब हम एक बार कंसिडर करेंगे कि log 1 plus Zn वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है एंड वी विल प्रूव दैट समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Zn कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली. और कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Zn converges absolutely and we will prove that summation of n varying from 1 to infinity log 1 plus Zn converges absolutely. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हम किस रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. फर्स्ट सपोज दैट summation of n varying from 1 to infinity Zn converges absolutely. अगर ये converge कर रहा है absolutely, it means that summation of n varying from 1 to infinity mod Zn converges. This implies that mod Zn approaches to 0 as n approaches to infinity. Therefore, for given epsilon there exists an integer and not such that mod of Zn minus 0 is less than of epsilon. और यहाँ पर इन्होंने एप्सिलॉन की वैल्यू चूज़ करी है दैट इज़ 1/2. 1/2 की चूज़ करी क्योंकि हमें अपना लास्ट रिजल्ट यूज़ करना है और उसमें रीजन क्या था, मॉड जेड लेस देन 1/2, इसलिए यहाँ पर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 चूज़ करी है. ठीक है स्टूडेंट. ना यूजिंग द रिजल्ट मॉड z/2 लेस देन मॉड ऑफ log 1 प्लस z लेस देन 3/2 मॉड ऑफ z. ऑब्वियसली ये जो सीरीज़ है ये किससे डोमिनेट हो रही है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द सीरीज़ मॉड ऑफ z. और ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस है. अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेस है तो इसका मतलब ये वाली सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेस होगी. तो देयरफॉर वी गेट दैट समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी mod log 1 plus Zn is dominated by the convergent series and therefore it must be convergent. इसका मतलब summation of n varying from 1 to infinity mod of log 1 plus Zn converges. तो जब आप mod हटाओगे तो क्या आ जाएगा, summation of n varying from 1 to infinity log 1 plus z converges, Zn converges absolutely. Now conversely we will suppose that summation of n varying from 1 to infinity log 1 plus Zn converges absolutely. और prove क्या करेंगे कि that summation of n varying from 1 to infinity Zn converges absolutely. अगर ये absolutely converge कर रहा है इसका मतलब summation mod of log 1 plus Zn converges. Therefore mod of log 1 plus Zn approaches to 0 as n approaches to infinity. ठीक है, that is अगर आप एक्सपोनेंशियल दोनों साइड लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस Zn अप्रोचेस टू e की पावर 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 दैट इज 1 प्लस Zn अप्रोचेस टू 1 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इसका मतलब Zn approaches to 0 as n approaches to infinity. तो Zn approaches to 0 as n approaches to infinity. Therefore, for given epsilon there exists an integer m0 such that mod of Zn minus 0 is less than 1/2 for all n greater than equals to n0. तो यहाँ पर भी ये जो सीरीज़ है दिस सीरीज़ इज डोमिनेटेड बाय द कन्वर्जेंट सीरीज़. अगर ये सीरीज़ हमारे पास डोमिनेट हो रही है बाय द कन्वर्जेंट सीरीज़ देयरफॉर इट मस्ट बी कन्वर्जेंट. अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ Zn कन्वर्जेस. इसका मतलब समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Zn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. यहाँ पर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 इसीलिए कंसिडर करी है क्योंकि जो हम रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें वो रिज़ल्ट ट्रू ही इस रीज़न के लिए है, इसलिए हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 कंसिडर करी थी. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन that if real part of Zn is positive for all n, then the infinite product is said to converge absolutely if and only if summation of n varying from 1 to infinity log Zn converges absolutely. ठीक है, ये डेफिनेशन का यूज़ करके हम अपनी नेक्स्ट क्रॉलरीज एंड थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉलरी इज if real part of Zn is positive then the infinite product
converges absolutely if and only if summation of n varying from 1 to infinity zn minus 1 converges absolutely. इस corollary को प्रूव करने के लिए हम above definition का यूज़ करेंगे and the theorem number 8. पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो इन्फानाइट प्रोडक्ट है ये कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली. अगर ये इन्फानाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली देन बाय द अबव डेफिनेशन समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग जेड एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एब्सोल्युटली. अगर समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग जेड एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली देन बाय थ्योरम नंबर 8 अगर यहाँ 1 प्लस जेड एन लॉग 1 प्लस जेड एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली आ रहा था तो वो क्या इंप्लाई कर रहा था, समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जेड एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली. अब हमारे पास क्या लॉग जेड एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, तो जस्ट आप जेड एन को जेड एन माइनस 1 से रिप्लेस करिए तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग जेड एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली इफ एंड ओनली इफ समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस 1 कन्वर्जेज एब्सोल्युटली. तो आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ यूजिंग थ्योरम 8 we have summation of n varying from 1 to infinity zn minus 1 converges absolutely. यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कन्वर्सली वी सपोज दैट समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी zn माइनस 1 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. अब मैंने कंसिडर करा ये कन्वर्ज करा एब्सोल्युटली. देन अगेन बाय थ्योरम नंबर 8 में आप zn को zn माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. देन अगेन बाय द अबव डेफिनेशन कि अगर समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली this means that the infinite product n varying from 1 to infinity zn वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एब्सोल्युटली. तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे. देन बाय द अबव डेफिनेशन इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द आवर corollary. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 9 विच इज द लास्ट थ्योरम ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट. Prove that absolutely convergence of a product implies convergence of a product. इसका मतलब absolutely convergence of infinite product, that is infinite product of Zn converges absolutely. ये क्या imply करे कि ये infinite product converge भी कर रहा है. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वी विल यूज़ आर थ्योरम नंबर 7 विच स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा है टू अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इफ एंड ओनली इफ समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्जेस. इस थ्योरम का यूज़ करके हम अपनी लास्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे. गिवन दैट infinite product converges absolutely then by definition क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. नाउ अ सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेस इम्प्लाइज कि वो कन्वर्जेंट भी होगी. तो इसका मतलब समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्जेस. नाउ बाय थ्योरम नंबर 7 अगर समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लॉग zn कन्वर्जेस है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दैट इन्फाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेस. और यही हमें प्रूफ करना था. यहाँ पर आप थ्योरम नंबर 7 की स्टेटमेंट विद इन अ डबल कोटेशन मार्क मेंशन करोगे. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट द इन्फाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेस. This shows that the absolute convergence of product implies convergence of the product. This completes our theorem. ठीक है स्टूडेंट्स, only this much for today class. Next class में हम अपना new topic start करेंगे, that is Weierstrass factor. Thank you class.